ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਕਾਮਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਸਰ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਬਰਾੜਾ, ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਬਰਾੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਔਰ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शुरुआत मैं थोड़ा सा यहीं से करूंगा क्योंकि जैसे कोविड पेशेंट्स जितने भी हैं उनमें अगर मैं एक डर की या खौफ की बात करूं तो खास तौर पर जो शुगर पेशेंट है, जो डायबिटिक हैं, उनमें सबसे ज्यादा या तो कहें कि इस चीज का खतरा माना जा रहा है या उनके मन में डर भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा मैं आपसे शुरुआत इसी चीज से करना चाहूंगा कि शुगर पेशेंट्स जो हैं उनके लिए एक्चुअल में कितना खतरा है या कितना खतरा मान के चलना चाहिए और कैसे उसके लिए जो एहतियात है वो रखने की जरूरत है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली खतरा है भी सही और नहीं भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आंसर हुआ, खतरा है भी सही और नहीं भी है जी। खतरा है तो हमको सबको पता है कि जिनको डायबिटीज होता है और खास तौर से जिनका डायबिटीज पुराना हो गया है, सो 5 साल 10 साल 20 साल पुराना डायबिटीज है, उन लोगों को डायबिटीज के साथ साथ में किडनी का प्रॉब्लम रहता है जी, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है। तो इन दोनों, और देखा है कि डायबिटीज के पेशेंट्स काफी लोग थोड़ा वजन भी ज्यादा की तरफ होता है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायबिटीज के मरीज को ज्यादा कॉमन होती है आम आदमी के कंपैरिजन में, ठीक है, एक ब्लड प्रेशर,
एक हार्ट का बीमारी और किडनी का बीमारी और मोटापा। तो ये सारी चीजें ज्यादा होने की वजह से कोरोना अगर हो जाता है तो उनका रिस्क बढ़ जाता है, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। तो डायबिटीज के पेशेंट को सबसे पहले तो ये कि अपने आप को पूरा जो भी प्रिकॉशन है सारे लेना है, जो बार बार सब जगह बताया जा रहा है वो सारे प्रिकॉशन लेना है। और फिर भी मैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक बार और बता देता हूँ कि 2-3 चीजें जो बहुत ही जरूरी है वो जो करना चाहिए। ठीक है। पहली बात है प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जो कोविड के टाइम में क्या क्या करना चाहिए वो सब करना है। 2 गज की दूरी रखना है, और खासतौर से आप कहीं भीड़ भाड़ में ऐसी कई जगह जा रहे हैं तो मास्क बिल्कुल होना चाहिए। और अभी रिसेंटली लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 मास्क लगाएं तो और ज्यादा सुरक्षा रहती है कंपैरिजन 1 के। जी। और दोनों वैक्सीन की डोज लगवाना टाइम से। ये दो चीजें करनी है, मतलब 2 गज की दूरी, 2 मास्क और 2 वैक्सीन के डोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर उसके बाद में देखा इनका शुगर खराब होता है, कंट्रोल अच्छा नहीं है जी, उन लोगों को थोड़ा रिस्क और भी ज्यादा हो जाता है। तो ये चारों चीजें अच्छे से करके रखेंगे तो रिस्क काफी कम हो जाएगा डायबिटीज के पेशेंट्स को भी। ठीक है। डॉक्टर साहब, बीच बीच में हमारे साथ कॉलर जुड़ते हैं जो जिनकी कुछ क्वेरीज होती हैं या कुछ सवाल होते हैं, वो हम लेते रहेंगे। मैं साथ में आपसे बातचीत करता रहूंगा। पहले कॉलर जुड़े हैं बठिंडा से। हाँ जी, की पूछना चाह रहे हो, की सवाल है अपना? हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर मैं ये पूछना चाहता सी सर तो कि मेरे फादर साहब ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 145 155 ਇਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ, तो ऐसे उस गोली में उतना मीठापन नहीं होता है जितना मीठापन की कोई सिरप लेते तो उसमें होता है। तो इसलिए उसमें कोई घबराने का बात नहीं है, वो आप टेबलेट दे सकते हैं। और जो 140 155 आप शुगर बता रहे हैं वो खाने के बाद का है कि भूखे पेट का है? हेलो। तो शुगर तो बहुत अच्छा कंट्रोल है, कोई घबराने का बात नहीं है, और वो टेबलेट भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ज्यादातर जी, एक राजपुरा तो कॉलर जुड़े ने रंजीत। हाँ जी रंजीत, की पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं पूछना चाहूंगा जी, मैनू 1 मार्च ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 200 ਕਿਲੋ ਦੇ ਤੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਤੇ जी। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋ? नहीं जी, मैं मार्च ਨੂੰ ठीक हो गया ਸੀ। 17 मार्च ਨੂੰ ठीक हो गए थे जी। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं। क्या सवाल मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया साहब। एक्चुअल में सर ये कह रहे हैं कि मार्च में इनको कोविड हुआ था, 17 मार्च के बाद ये कोविड से कवर अप हो गए थे, तो अब ये कब तक वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं? शुगर के भी पेशेंट हैं। बहुत ही अच्छा सवाल जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और सभी के लिए जरूरत का इंफॉर्मेशन है जी। तो ये देखा गया कि आप जब भी आपको अगर कोविड हो गया तो उसके 8 से 12 हफ्ते के अंदर वैक्सीन लगवाना चाहिए। 8 से 12 हफ्ते के अंदर। 17 मार्च को हुआ तो आपको 17 अप्रैल 17 मई निकल गया है, अब आप नेक्स्ट विद इन 1 मंथ में वैक्सीन लगवा सकते हैं। कभी भी लगवा सकते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, नॉर्मली डॉक्टर साहब किसी को भी कोविड हुआ है तो वही यही टाइम पीरियड है कि 8 से 12 हफ्ते में ही लगवाना है जैसे ही आप कोविड से ठीक हुए? हाँ हाँ, यही प्रोटोकॉल है। ओके। क्योंकि वो एंटीबॉडी इन्फेक्शन से बन जाती है और वो परसिस्ट करती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें इम्यूनिटी लेवल का क्या स्टेटस रहता है? क्या दूसरे से अगर हम कंपेयर करें, जिस बंदे को शुगर नहीं है, तो दोनों के इम्यूनिटी लेवल में क्या फर्क होगा? तो इम्यूनिटी लेवल डिपेंड करता है आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है जी। अगर आपका शुगर कंट्रोल ओवर द पीरियड बहुत अच्छा रहा जी, तो आपका इम्यूनिटी लेवल उतना ही है जितना कि बिना नॉन डायबिटिक।
लेकिन आपका शुगर बराबर खराब चल रहा है, कंट्रोल नहीं है, हीमोग्लोबिन A1C बहुत ज्यादा है, जी तो उन लोगों का इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। बठिंडा तो एक होर कॉलर जुड़े ने। हाँ जी, बूटा सिंह जी की पूछना चाह रहे हो, सवाल की अपना? हाँ जी विजयपाल जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। की पूछना चाह रहे हो जी? मैं जी मेरी 2014 ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। जी ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ नहीं जी? डॉक्टर साहब एक्चुअली ये हार्ट पेशेंट हैं, 2014 में बाईपास हुई थी, तो ये पूछ रहे हैं कि मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं या नहीं। हाँ, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन के साथ। ऐसा कोई वैक्सीन का मतलब मना ही नहीं है। जिनको हार्ट का बीमारी है, रादर जिनको इस तरह का बीमारी है, उनको जल्दी टाइम से वैक्सीन लगाना चाहिए। और कभी अगर गलती से बीमारी हो भी जाए तो उतना सीरियस असर नहीं रहेगा बीमारी का। और डॉक्टर साहब ये बड़ा कॉमन सवाल है, ये जो शुगर के पेशेंट्स भी हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जो एलर्जिक हैं, जिनको किसी भी तरह की एलर्जी है, कईयों को स्किन प्रॉब्लम है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो तकरीबन जो ऐसे लोग हैं, ऐसे मरीज जो होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उन सब की क्वारी लगभग इस चीज़ को लेकर यही है कि क्या वैक्सीन उनको किसी तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं करेगी। हाँ, मैं यहाँ पे एक रिसर्च का हवाला देना चाहता हूँ जी। तो अमेरिका के अंदर एक जो रिसर्च हुई उसमें उन्होंने क्या किया, करीब 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा जी। कितना? 8 करोड़। उसमें से केवल 80 लोगों को किसी कारणवश उनका कोविड होने के वजह से केवल 80 लोगों की मौत। तो कहने का मतलब 8 करोड़ में से केवल 80 लोगों को प्रॉब्लम हुई जी। तो ये बहुत ही वैक्सीन जो है बहुत ही कारगर है। तो इसलिए वैक्सीन लगाने में कोई ज्यादा सोचने विचारने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ कि शुरू में लोगों ने कुछ एक ऐसा माहौल बना दिया कि वैक्सीन में कोई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, किसी ने बोला स्टडी कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, तो एक आम आदमी के दिमाग के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया कि भाई वैक्सीन लगाने से नुकसान हो सकता है। जी जी। और जबकि ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अभी दुनिया में करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाया, किसी को ऐसे कोई नुकसान नहीं है। पर साथ में मैं ये चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई ये सोच ले कि मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली है तो अब मुझे कोरोना नहीं होगा, ये गलत फहमी, ये नहीं हो सकता है। ये नहीं है कि अभी कोरोना लगा तो वैक्सीन लगवा दे आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना हो सकता है दोनों लगाने के बाद भी, लेकिन ये अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, प्रूव है कि आपने वैक्सीन लगाया तो आपको बीमारी कम सीवियर वाली होगी। सीवियर अटैक से अपने आप को बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ ने वैक्सीन लगा लिया तो हम आराम से पार्टी करने निकल जाए, हाँ, घूमने फिरने और मास्क उतार दें, ये सब नहीं कर सकते। हाँ। एक और कॉलर जुड़े ने डॉक्टर साहब साढ़े नाल। हाँ जी, कितों बोल रहे हैं और की सवाल है अपना? कौर सिंह जेतो मंडी तो बोल रहे हैं जी। हाँ जी, दसो जी। बराड़ साहब, मैं शुगर का मरीज है जी, ते मैं शुगर चेक करा के गया सी, मैं वैक्सीन लवाई हुई है जी। ठीक है। ते उम्र मेरी 68-69 साल है, ते बिल्कुल तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है, कोई गलबात नहीं होगी। ते मैं इम्यूनिटी ਵਧਾਉਣ वास्ते पूछना चाहना जी भी की घरेलू इम्यूनिटी किवें ਵਧਾਈ जा सकती है खान पीन की? डॉक्टर साहब सुना सवाल? क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, एक्चुअल में सर ये शुगर के पेशेंट हैं और एक वैक्सीन इन्होंने लगवा ली है और अब ये कह रहे हैं कि मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाने पीने में किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता हूँ? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है जी। देखो, डाइट के बारे में एक सवाल है तो हमेशा होता है कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए जी। बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट में वो सब चीजें होती है जो आप रूटीन खाना खाते हैं, उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स हो, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो और रिक्वायर्ड अमाउंट में आपके अंदर वसा की मात्रा भी हो, पेट की। तो कहने का मतलब अलग से कोई डाइट में बहुत चेंज नहीं होता है, डाइट वही होता है, पर डायबिटीज के मरीज को अपनी डाइट जो है लिमिट में खाना चाहिए और जो फ्री शुगर होती है जिसके अंदर भी मीठी चीजें होती है, जो शक्कर से या गुड़ से बनी होती है, वो चीजें नहीं खाना। बाकी और कोई लिमिटेशन नहीं है, खाना है
लिमिट मात्रा में खाना है और थोड़ी थोड़ी देर के गैप में खाना है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग नहीं करना, एक साथ ज्यादा नहीं खाना ठीक है, ठीक और है मीठी चीजें नहीं खाना है। ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ नहीं है? सो आप कह रहे हैं गला खराब हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बुखार है साथ में। बुखार थोड़ा बहुत बीच में फील होता है, चेक करने पे नहीं आता है मतलब। टेस्ट करा लिया? हाँ जी हाँ सर। पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के टेस्ट कराना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर आपने कोविड टेस्ट कराया कि नहीं? नहीं करवाया सर अभी। कराओ, बिल्कुल कराना चाहिए, ताकि कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको भी पता रहेगा और दूसरा है कि आपके घर वालों को भी उससे प्रोटेक्शन रहेगा, आपके दोस्तों को भी मिलने जुलने वालों को प्रोटेक्शन रहेगा। और अगर पॉजिटिव आता तो आइसोलेशन होना है, नहीं आता तो फिर आप अपना ध्यान से काम कर सकते हैं। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो ऐसा है कि पॉजिटिव आने से घबराना नहीं है, आप अपना ध्यान रखो। फिर भी ऐसा देखा गया कि फिर भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो कोई ऐसे घबराने का बात नहीं है जी। इससे आपको कोई जी क्या क्वेश्चन था? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਬੜਾਣਾ PGI ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।